Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. In the last class we had studied the word problems on percentage. In the today's class also we will be studying word problem on percentage with few more questions. As this is a big chapter, so I am giving you homework of only 5 questions daily. So it is an humble request to all of my lovely students is to solve the questions regularly and do send me your work. Most of the students are not sending me their homework. They are not doing any work at home. In fact, they are leaving the WhatsApp group itself. They are not even trying to study at home. So it's a request to all of lovely students is to pay attention towards your studies, because it will matter for you, not for me. If you study well, you will succeed in your life, nor do I. So today again we will look some word problems on percentage, and probably this would be the last class for word problems on percentage. Okay, so let's start with our first question from your textbook, that is R.S. Agarwal. So let me write a heading over here, word problems on percentage. Word problems on percentage. Okay. The first question which we are going to look today is question number 15 from your exercise 10b. Many of the students requested me, sir, please make us know how to solve this question, as we don't know. So I provided you with the solution, but I am trying to explain you here more clearly. The question is very simple. The question is, in an election there were 2 candidates A and B. एक election में 2 candidates थे A and B. The total number of voters in the constituency was 60,000. Total vote देने वाले कितने थे? 60,000. So let me write over here, total voters in the constituency. कितने थे? 60,000 टोटल वोटर्स थे कंस्टिट्यूएंसी में जो वोट देने के लायक थे. दैट मीन्स दे कुड गिव वोट. ओके, एंड 80% ऑफ द टोटल वोट्स वर पोल्ड. इतने देने वाले थे, लेकिन इसमें से कितने लोग दिए? 80%. तो व्हाट कैन आई राइट हियर? नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स. कितने वोट्स डाले गए? तो 80%. तो 80% ऑफ किसका? 60,000. इतने वोट्स डाले गए. ओके, तो वी कैन कैलकुलेट इट, दैट इज 80 by 100 into 60,000. 00 will cancel. जब 00, 8 6 are 48 and 000. 48,000, यानी कि इतने वोट्स डाले गए. 60,000 टोटल वोटर्स थे, इसमें से 48,000 वोट्स डाले गए. If 60% of the polled votes were cast in favor of A, in favor of A, A के फेवर में कितने वोट्स गए? In favor of A. Question number 15. Question number 15. In favor of A, A के फेवर में कितने वोट्स डाले गए? 60%. तो 60% ऑफ किसका? जो वोट डाला गया, that is 48,000. 60% का मतलब 60 by 100 into 48,000. 00 will cancel. 00. 6 8 जा 48 का 8 कैरी कितना? 4. 6 4 जा 24 plus 4 28 and 1 and 2 00. 28,800 votes किसके फेवर में आए? A के फेवर में. ना तो क्वेश्चन आस्किंग हाउ मेनी वोट्स वर रिसीव्ड बाय B. तो B को कितना वोट्स मिला? votes received by B. कितना वोट्स मिलेगा? टोटल था 48,000, उसमें से 28,800 किसको मिल गया? A को. B को कितना मिलेगा? We will subtract 48,000 minus
28,800. So we can solve it. Double zero will cancel. Double zero. Zero will not subtract 8, so we'll take on carry 10. 10 minus 8, 2. 7 will not subtract 8, we'll take a 17 minus 8, 9. And 3 minus 2, 1. 19,200 are the votes received by B. और सिंपली जब A को वोट मिल गया 60,000, जब A को कितना वोट मिल गया 60%, तो B को कितना मिलेगा? टोटल 100 के लिए कितना चाहिए? 40%. तो सिंपली अगर हम लोग निकालते तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि वोट्स रिसीव्ड बाय B 60% A को, तो B को कितना 40%, तो 40% ऑफ किसका? टोटल 48,000. 40 by 100 into 48,000. Double zero will cancel. Double zero. 8 4 जा 32. 2 कैरी कितना 3. 4 4 जा 16 and 3 19. 19200. ओके. अगर आपको मन है सब्ट्रैक्ट करके निकालने का, आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. इफ नॉट, यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द परसेंटेज. इज इट क्लियर? जब 60% ए को मिला तो बी को कितना मिला? 40%. डायरेक्टली निकाल देंगे 40%. आई डोंट प्रेफर दिस मेथड, है ना. दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक मेथड. यू कैन गो विथ दिस मेथड. एज व्हेन यू विल सॉल्व विथ दिस मेथड, द इन्विजिलेटर और द समवन हु विल करेक्ट योर कॉपीज or grade your copies will think that the student is very bright. So I request you to go with this particular method, as this is a very simple method. I hope the first question of the today's session is very clear to all of you. है ना? Do watch it line by line and very clearly. Do not skip the video. Okay. Let's move on to the second question. That is also a very easy question. In the last class, I taught you about the increase percent and decrease percent. So I am taking one more question. A very interesting question. The question is, the salary of an officer is increased by 20%. Question number 20. Question number 20. Question number 20. The salary of an officer is increased by 20%. By what percentage should the new salary be reduced to restore the original salary? किसी ऑफिसर का सैलरी पहले 20% बढ़ा दिया गया, अब बोल रहा है कि नया सैलरी को कितना परसेंट घटाया जाए कि वापस ओरिजिनल सैलरी आ जाए. सो लेट द ओरिजिनल सैलरी या फिर सैलरी, लेट द सैलरी ऑफ ऑफिसर इक्वल टू ₹100. ऑफिसर के सैलरी को कितना मान लेते हैं? 100. सैलरी आफ्टर 20% इंक्रीज, 20% बढ़ने के बाद सैलरी कितना हो जाएगा? आप बताइए. 20% अगर सैलरी बढ़ गया तो 100 में 20 ऐड कर देते हैं, तो 120% ऑफ किसका? 100. क्या हो जाएगा? 120 by 100 into 100. 100 से 100 कैंसल, बचा कितना? 120. यानी कि पहले सैलरी था 100, अब सैलरी 20% बढ़ गया तो सैलरी कितना हो गया? 120. अब बोल रहे हैं कि बाई व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी. आप बताइए इस नए वाले सैलरी को कितना घटाएंगे कि पहले वाला सैलरी आ जाए? तो साफ दिख रहा है, जब 120 है, 120 में से कितना घटाएंगे तो 100 आएगा. डेफिनेटली 20. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? अमाउंट रिड्यूस्ड, कितना घटाया जाना चाहिए? तो 120 माइनस 100, तो मात्र 20 रुपया अगर हम घटा दें तो उसका पहले वाला सैलरी आ जाएगा. हम लोग इस 20 रुपीज क्या किया है? रिड्यूस किया है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना परसेंट, तो क्या निकालेंगे हम लोग? परसेंटेज. तो रिड्यूस परसेंट निकाल सकते हैं या डिक्रीज परसेंट निकाल सकते हैं. बोथ आर सेम. ओके. तो डिक्रीज परसेंट निकाल देते हैं. डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हैं आप, नेट डिक्रीज भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपको जो समझ में आप वो लिख सकते हैं. डिक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. याद रखिएगा इतना सारा चीज. 20 डिक्रीज कितना हो जाएगा? 20. ओरिजिनल वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना से डिक्रीज किया गया है? 120 में से डिक्रीज किया गया है, ना कि 100 में से डिक्रीज किया जा रहा है. तो 20 by 120 into 100. आई एम सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट पेज.
इंक्रीज कितना 20, ओरिजिनल वैल्यू कितना 120 इंटू 100, 0 विल कैंसल, 0 2 6 जा 12, 2 से 50 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, हो गया 50/3%। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16 3 सा 48, 16 इंटीजर 2/3% आंसर। I hope it is clear to everyone. Let's move on to the third question. The third question is also very interesting. The third question I am taking is question number 22. 21 is very easy. I am taking question number 22. Nikhil income is 20% less than that of Akhil. Nikhil income is 20% less than that of Akhil. निखिल का इनकम जो है वो अखिल के इनकम से कितना कम है 20% कम है। निखिल का इनकम अखिल के इनकम से 20% कम है। तो ऐसा करते हैं कि लेट अखिल इनकम इक्वल टू कितना मान लेते हैं ₹100। तो निखिल का इनकम कितना कम है 20%, लिख देते हैं निखिल इनकम 20% लेस देन अखिल। ओके, निखिल का इनकम जो है वो 20% कम है किससे अखिल से, और अखिल का कितना मान लिया 100। तो निखिल का इनकम निकाल लेते हैं। निखिल इनकम 20% कम का मतलब कितना 100 में 20 की बच गया कितना 80% किसका ऑफ 100। 80% का मतलब 80/100 इंटू 100 कट गया, बचा कितना ₹80। यानी कि अखिल का इनकम कितना 100 और निखिल का इनकम कितना हो गया 80। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मच परसेंटेज अखिल इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल। तो ये बताइए कि अखिल का इनकम जो है वो निखिल के इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। अखिल का इनकम 100 और निखिल का इनकम कितना आ गया 80। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अखिल का इनकम निखिल के इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले कितना ज्यादा है ये निकाल लेते हैं। तो अखिल इनकम इज मोर बाई 100 माइनस 80, कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। तो कितना परसेंट हमको निकालना है, तो इंक्रीज परसेंट निकाल लेते हैं। इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज कितना 20, क्योंकि इसका इनकम जो है वो 20 ज्यादा है, बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना 80 से ज्यादा है, इंटू 100। 20 से कट जाएगा 84 बार में और 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में 25%। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, अखिल इनकम इज मोर देन अखिल इनकम इज मोर देन निखिल इनकम बाई कितना परसेंट ज्यादा है 25%। आई होप इट इज क्लियर। आप इंक्रीज बाय ओरिजिनल वैल्यू अगर इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। दैट इज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर, कौन सा ले, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आई एम स्किपिंग क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24, very easy question. The value of a machine depreciates 10% every year. Depreciate का मतलब घटना और अगर appreciate हो तो मतलब बढ़ना। ठीक है, The value of a machine depreciates 10% every year. हर साल 10% वैल्यू घटता है। If its present value is 387,000, 3,87,000, what was its value 1 year ago? एक साल पहले कितना होगा। अगर हर साल मशीन का वैल्यू 10% घटता है और घटकर प्रेजेंट वैल्यू है 3,87,000, तो एक साल पहले वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो लेट द वैल्यू ऑफ मशीन 1 year ago बी एक्स। एक साल पहले मशीन की वैल्यू को कितना मान लेते हैं एक्स। ओके, वैल्यू ऑफ मशीन कितना घटता है, वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स 10% एनुअली, मतलब हर साल।
10% एनुअली। अगर 10% वैल्यू घट गया तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 387,000 387,000। मशीन की वैल्यू को क्या मान लिए? x। हर साल मशीन का वैल्यू कितना घटता है? 10% घटता है। हर साल मशीन का वैल्यू 10% घटता है। उसका प्रेजेंट वैल्यू 3,87,000 है, तो एक साल पहले उसका वैल्यू क्या होगा? अगर हर साल 10% घटता है तो ये घट कर आया होगा वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा? 90%, क्योंकि 10% तो घट गया, तो 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। सो व्हाट वी कैन राइट, 90% ऑफ x। पूरे मशीन के वैल्यू का 90% क्या है? 3,87,000। I hope it is clear. 90 by 100 into x is equal to 387,000. तो x is equal to 387,000 multiplied by 100 and divided by 90. 0 will cancel 0. 9 4 जा 36. Remainder 2, 27. 9 3 are 27. And how many 0? 3 0. So x is equal to 4,3,000 and one more 0. 4,30,000. This was the value of machine 1 year ago. ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 3,87,000, 90% ऑफ x इक्वल टू 3,87,000। x के वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4,30,000। तो व्हाट वी कैन राइट, हेंस द वैल्यू ऑफ मशीन one year ago was rupees 4,30,000. I hope it is clear for everyone. Let's move on to next question. The question number is 26. I am skipping question number 25 as it is of the same type. Question number 26. The question is, the population of a town increases 10% annually. किसी भी टाउन का पॉपुलेशन जो है वो हर साल 10% बढ़ जाता है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 60,000, अगर उसका प्रेजेंट का पॉपुलेशन जो है वो है 60,000, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? तो 2 साल के बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। Okay, let me write population increases. Population increases 10% annually. हर साल कितना बढ़ता है? 10%। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? प्रेजेंट पॉपुलेशन है 60,000। 60,000। तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 year? तो 2 साल के बाद इसका पॉपुलेशन क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। 1 बाय यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट विच यू विल स्टडी इन द अपकमिंग सेशन। सिंपल इंटरेस्ट में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। एंड बाय परसेंटेज। तो हर साल 10% घटता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है? 60,000। तो आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद पहले निकालते हैं, फिर दूसरे साल का निकालेंगे। आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 10% बढ़ गया है, यानी कि 110% ऑफ 60,000। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन 10% बढ़ के अगर घट जाता है तो माइनस कर देते हैं, और अगर बढ़ जाता है तो प्लस कर देते हैं। तो 10% बढ़ गया, यानी कि 110%। तो 110 by 100 into 60,000। 20 will cancel 20। 11 6 जा 66 and 1 2 3 0। 66,000। ये 1 साल के बाद। अब आपको निकालना था 2 साल के बाद, तो एक और बार यही काम करेंगे। आफ्टर 2nd year, या फिर लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 2nd year। फिर से कितना? तो फिर से 10% बढ़ जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा? 110%। लेकिन 110% किसका? 66,000 का। 66,000। तो 110 by 100 into 66,000। 0 0 cancel
0 से 0 कैंसिल, 66 इंटू 11 कितना हो जाएगा 660 एंड प्लस 66 726 एंड डबल 0 72,600. This will be population at the end of second year, 2 साल के बाद. I hope it is clear to everyone. Let's take one more question of our today's session. Question number 27. बहुत सारे बच्चों को इसमें definitely problem हुआ, इसलिए I am making you solve this question previously. Question number 27. The question is very easy question. The question is, due to an increase in the price of sugar by 25%, चीनी का दाम जो है वो 25% बढ़ गया. By how much percent must a householder decrease the consumption of sugar? एक हाउसहोल्डर को अपना कंजम्पशन यानी कि खपत कितना कम करना पड़ेगा, so that there is no increase in the expenditure on the sugar. कितना वो अपना चीनी इस्तेमाल करना कम कर दे कि कोई भी उसको एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगे. ठीक है, क्योंकि चीनी का दाम तो बढ़ गया. मान लीजिए कि आप एक बिस्किट खरीदते हैं 10 रुपीज में, अब आपको जो फादर है वो आपको हर दिन 100 रुपीज, हर मंथ के लिए 100 रुपीज देते हैं बिस्किट खरीदने के लिए. ठीक है, तो आप एक मंथ में 10 पैकेट खरीदिएगा तो 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट खरीद लीजिएगा तो 100 रुपीज खत्म. लेकिन क्या हुआ कि बिस्किट का दाम जो है वो 2 रुपीज बढ़ गया. अब बिस्किट कितना में मिलेगा, 12 रुपीज में बिस्किट मिल रहा है. ठीक है, अब पापा आपको बोले कि नो, अब हम आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे बिस्किट खरीदने के लिए, सिर्फ 100 रुपीज जो देते थे वही देंगे. तो क्या अब आप बढ़े हुए दाम के साथ 10 पैकेट बिस्किट खरीद सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 12 रुपीज में कितना बिस्किट खरीद सकते हैं. अगर 10 खरीदना चाहिएगा तो 120 रुपीज लगेगा, लेकिन आपके पास है कितना, सिर्फ 100 रुपीज. तो 12 8 जा 96, सिर्फ 8 पैकेट बिस्किट खरीद सकते हैं और आपके पास 4 रुपया बच जाएगा. तो वही कंडीशन यहाँ पर है. चीनी का दाम 25% बढ़ गया है, तो चीनी का इस्तेमाल कितना कम कर दिया जाए, जस्ट लाइक बिस्किट का इस्तेमाल कितना कम कर दिया जाए कि कोई भी एक्स्ट्रा खर्च हमको नहीं लगे, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए ना पापा पैसा देंगे ना यहाँ पर चीनी खरीदने के लिए पैसा मिलेगा. इज इट क्लियर? ओके, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सुगर बी ₹100 पर केजी. ओरिजिनल प्राइस हम लोग शुगर का क्या मान लेते हैं, ₹100 पर केजी. प्राइस इंक्रीज्ड बाई 25%. प्राइस कितना बढ़ गया है, 25%. तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा शुगर का, न्यू प्राइस ऑफ शुगर, क्योंकि 25% बढ़ गया तो 100 में ऐड कर देंगे 25, तो क्या हो जाएगा 125% ऑफ किसका, ₹100 पर केजी. क्वांटिटी को नहीं छोड़ेंगे. तो 125 बाई 100 इंटू 100 कट गया पर केजी साइड में, तो कितना गया 125 पर केजी रुपीज. ठीक है, पहले दाम था 100 रुपया में 1 किलो, अब हो गया 125 में पर केजी. तो एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा नहीं खरीदने के लिए, जस्ट कंडीशन ऑफ अ बिस्किट. तो क्या करेंगे, कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा. ओके, तो कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड. कितना डिक्रीज किया जाए, शुड बी डिक्रीज्ड इक्विवेलेंट टू. इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम है. इक्विवेलेंट टू ₹125 माइनस 100 पर केजी, यानी कि ₹25 पर केजी के अकॉर्डिंग हमको जो है वो क्वांटिटी डिक्रीज करना पड़ेगा. समझ में आ गया. पहले 100 रुपया था, 125 हो गया, तो 125 में से 100 गया, कितना बच गया 25. तो 25 रुपया का जो भी क्वांटिटी मिलेगा हमको उस 25 वाले क्वांटिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो डिक्रीज करना पड़ा. ठीक है, तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे. डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज बाई ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. कितना डिक्रीज किया है, 25.
5। ओरिजिनल वैल्यू था कितना 100, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू लेंगे कितना 125, क्योंकि नाम बढ़ने के बाद हमको 125 से सब्ट्रैक्ट करना है बाई 125 इंटू 100। 25 5 जा 125 और 5 से 100 कट जाएगा। 25 5 जा 125 और 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में। तो कितना परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा 20% का डिक्रीज। सो व्हाट वी कैन राइट, द कंजम्पशन ऑफ शुगर should be decreased by 20%। तो कंजम्पशन ऑफ शुगर जो है वो 20% कम करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मान लीजिए 1 kg ही था तो 20%, 1 kg का 20% कितना होता है, कमेंट मी योर आंसर। आप सब हमको कमेंट करके बताएं कि अगर 1 kg ही मान ले क्वांटिटी, तो उस इंसान का पहले कितना इस्तेमाल होता था, अब कितना इस्तेमाल होगा बढ़ने के बाद, और 20% कम कर दे तो वो कितना क्वांटिटी घर ले गया। इज इट क्लियर एवरीवन? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो सेशन। आई होप आपको परसेंटेज अच्छे से समझ आया होगा, और अगर किसी भी बच्चे को परसेंटेज समझ में नहीं आया है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा भी एक्सरसाइज 10C बाकी है MCQ, उसमें भी वीडियोस बनेंगे, सो डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो टू। बट अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, डू वन थिंग, जस्ट कमेंट मी डाउन द क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सर, आई एम हैविंग डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 20, 22, 27, 29, anything. Okay, I'll try to make a separate video on that particular topic. Till then, thank you all, have a good day and do remember to watch the complete video। और इसके पहले वाला जो भी वीडियो है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, so watch that video too। Thank you, have a good day।